ڈالر کی اونچی بہت اونچی اڑا، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر۔ انٹر بینک میں آج روپے کے مقابلے میں ڈالر 4 روپے 7 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 237 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں صورتحال یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ایک ڈالر 239 روپے پر کا ہو گیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز ریاض اینڈی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، آخر ڈالر کیوں اتنا بے قابو ہے؟ کیا سیاسی بے یقینی کی صورتحال جو ہے وہی اس کی مینلی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ ویری رائٹ نیلم، جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں ایک تو تشویش پہلے ہی سے تھی، اینڈ جو اب اس نے اس کو مزید اضافہ کیا ہے، تو یس مین وجہ تو یہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت ڈالر کے ریزرو ہے وہ بہت کم ہے۔ امپورٹ کی جو پیمنٹ ہے اس کو وہ ہم نے ادا کرنی ہے، تو وہ امپورٹر جب بینک کے پاس جا رہے ہیں اور ڈالر ادائیگی کے لیے ڈالر بائی کرنے کے لیے، تو بینک اپنا ریٹ کوٹ کر رہے ہیں، اینڈ ان کے ریٹ کے اندر جو ہے وہ بڑا فرق ہے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے اٹس مسنگ سم ویئر، وہ اس چیز کو آئی تھنک وہ روک نہیں پا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم امپورٹ کو کرٹیل کر رہے ہیں، لیکن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹس ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی بائنگ ہو رہی ہے، تو اٹس ویری ہاچ پاچ سچویشن۔ کوئی کیا کس طریقے سے ہم نے عمل درآمد کرنا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اینڈ سیکنڈ، آج فیڈرل ریزرو کی انٹرسٹ ریٹ میٹنگ بھی جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہے، اور وہاں پر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو یہ اضافی پریشر آئے گا۔ تو یس نیلم، ہمارے اپنے انٹرنل مسئلے ہیں، انٹرنیشنل مسئلے ہیں، اور اس کے اوپر حال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ بھی ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوا ہے، تو یہ ساری جو اوور آل صورتحال ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ آپ کو نیگیٹو بہت شکریہ ریاض ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملنے کی امید ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ اور موڈیز نے ریٹنگ آؤٹ لک جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں ماہ روپے اور بانڈز پر ضرب لگی سیاسی بے یقینی صورتحال کی وجہ سے آئی ایم ایف کی طرف سے مدد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے سرمایہ کاروں کو بے چینی ہے، پاکستانی قوم سری لنکا جیسی صورتحال کے خوف سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف فنڈز سے روپے اور بانڈز پر دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ قرض جاری ہونے کے بعد مارکیٹ میں اعتماد آئے گا، کثیر الجہتی اداروں سے اضافی فنڈز ملنے کی راہیں کھلیں گی۔ پاکستانی حکومت سری لنکا کی طرح کے ڈیفالٹ کے خوف سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کا خوف دور کرنے کے لیے آئی ایم ایف، چین، سعودی عرب سے امداد کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت بلوچستان نے زیارت آپریشن کی جوڈیشل انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف سے۔ سلمان، اپڈیٹ کیجئے گا۔ حکومت بلوچستان نے زیارت آپریشن میں مارے گئے افراد کے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کا فیصلہ کرتے ہوئے آج جوڈیشل انکوائری کے لیے رجسٹرار ہائی کورٹ کو ایک مراسلہ تحریر کیا ہے، جس میں ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کا نام تجویز کیا جائے تاکہ جو زیارت آپریشن میں ہلاک افراد ہیں ان سے متعلق وہ زیر حراست تھے یا نہیں تھے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے مراسلہ انہیں بھجوایا گیا ہے۔ زیارت آپریشن میں مغوی کرنل لئیک بیگ اور کرن کی بازیابی کے لیے اور بعد میں آپریشن میں 9 افراد مارے گئے تھے، اس کا تعین کرنے کے لیے یہ جو ہے مراسلہ تحریر کیا گیا ہے۔ اس کا جواب آئندہ 1-2 دنوں میں۔ جی چلیں، بہت بہت شکریہ سلمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب کی پگ پرویز الہی کے سر، وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب کی معذرت کے بعد صدر عارف علوی نے رات 2 بجے پرویز الہی سے حلف لیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد پرویز الہی لاہور سے خصوصی پرواز سے اسلام آباد پہنچے تھے۔ سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دیتے ہوئے پابند کیا تھا کہ گورنر پنجاب پرویز الہی سے منگل کی رات 11:30 بجے تک وزیر اعلیٰ کا حلف لیں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ گورنر اگر پرویز الہی سے حلف نہ لیں تو صدر مملکت وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لیں۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں ایف سی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے اس کو اس انداز سے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے کہ آپ اتنی جلدی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک عملی شکل میں ہمارے سامنے جو ہے وہ لا کھڑا کریں گے۔ میں اس پر کمانڈنٹ ایف سی اور اکبر ناصر خان صاحب کا خاص طور پہ ذاتی طور پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
जिस तरह से मुझे बताया गया है कि 400 के करीब जो है वो जवानों को ये ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो दी जा चुकी है, और इस साल 2000 एफसी के जवानों को जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इसके लिए 667 मिलियन की रकम जो आपकी डिमांड थी उसमें से 333 मिलियन की अदायगी हो चुकी है, और बाकी अदायगी जो है वो जैसे ही आप 1000 के फिगर से आगे बढ़ेंगे तो उसको जो है वो अदा कर दिया जाएगा। इसी तरह से जिस तरह से कमांडेंट साहब ने बात की है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी थी कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस की तनख्वाहों में जो है वो बड़ा फ़र्क था, और ये को तकरीबन 738 मिलियन जो है वो फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन थी इसमें, तो उसको भी जो है वो दूर कर दिया गया है। जिस तरह से एफसी की जो है वो तनख्वाह जो है वो केपी के पुलिस के बराबर हो चुकी है, इसी तरह से पंजाब पुलिस के बराबर जो है इस्लामाबाद पुलिस को तनख्वाह जो है वो 1 जुलाई से मिलेगी। इसमें फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है या हमारा जो फाइनेंस का महकमा है, उसमें आपको पता है कि उनके काफ़ी सारे तकाजे होते हैं फ़ाइल के भी और नोटिफिकेशन तक पहुंचने के, लेकिन मैं रोज़ाना इस बारे में मालूम करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आज जो सुबह मेरी बात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से भी और फाइनेंस सेक्रेटरी से भी, 1-2 रोज़ में ये सारा मरहला जो है वो मुकम्मल हो के तो है ये पैसे जो है ये आपको आपकी तनख्वाह जो है 1 जुलाई से ये आपका हक है, और वहीं से जो है वो आपको जो है ये मिलेगी। मैं इस बारे में ये भी बात करता चलूँ कि एफसी के जवानों का राशन अलाउंस का बड़ा मामला था, और जबकि दूसरी फोर्सेस के लोगों को 264 रुपये, जबकि एफसी के जवानों को सिर्फ जो है वो 92 रुपये जो है वो मिलते थे। इस मसले को भी फौरी तौर पे हल किया गया है, और अब आपको भी उन्हीं के बराबर, बाकी फोर्सेस के बराबर जो 25,000 से ज़ायद जवान एफसी के हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला जो है वो राशन अलाउंस जो है वो मिला करेगा। ये भी तकरीबन कोई 1 अरब रुपए से जो है वो ज़्यादा की जो है वो फाइनेंशियल जो है वो इम्प्लीकेशन है। इसी तरह से बाकी आपको एक बेहतरीन फोर्स बनाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो बेहतरीन हो, और आपके जो है वो सर्व करने के हालात जो हैं उनमें आपको आला तरीन और उम्दा तरीन जो है वो फैसिलिटीज़ हासिल हों, और उसके अलावा आपकी बूदोबाश का ख्याल इस तरह से रखा जाए कि आपको अपने घर से भी जो है वो आसूदगी का जो है वो एक माहौल जो है वो मिले, तभी एक नौजवान जो है वो अपनी नौजवान और एक ऑफिसर जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज से जो है वो हल कर सकता है। तो इस सिलसिले में जो ये फाइनेंशियल जो है वो इंटरवेंशंस की गई हैं, उनका बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि आपके माली हालात को जो है वो बेहतर किया जाए और आपको फाइनेंशियल आसूदगी से जो है वो हमकनार किया जाए। इस सिलसिले में बाकी चीज़ें भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। ये चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी थी कि आपकी तनख्वाहों पर इजाफा किया जाता, आपके राशन अलाउंस पे जो है वो इजाफा किया जाता। इसी तरह से जो आपके साथी जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी में जो है वो जामे शहादत एफसी की पासिंग आउट परेड की तकरीब इस्लामाबाद में जारी है, जिससे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खिताब कर रहे हैं। राजनपुर में अक्सर मकामात पर सैलाब से मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद बता रहे हैं लियास रज़ा। जी, नदी नालों के सैलाब ने मैदानी और पचात के इलाकों को डबो चुका है और इस टाइम भी सैलाबी पानी की सतह उसी तरह बरकरार है, और कुछ लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम तक तो मुंतकिल हो चुके हैं। मैं उनके आपको हालात दिखाता हूँ कि किस तरह वो खुले आसमान तले इस टाइम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका सब कुछ पानी में बह चुका है, इनके घर की दीवारें तक गिर चुकी हैं, और ये अपनी जान बचाकर इस मकाम पर इस टाइम जगीर गबोर बस्ती में आकर उन्होंने पनाह ली हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनके पास जो चीज़ थी अपने घर से की वो ये
ले कर आए हैं और ये इस टाइम खुले आसमान तले मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ, ये बताएं कि आपकी क्या पीछे क्या हालात हैं कि पानी कितना था और किस तरह यहाँ पहुँचे आप? पानी बहुत ढेर है, हुण भी 3.5 फुट पानी फसलें खलोता है, फसलें डूब गई, हर शय मुक गई। ये बताएं कि यहाँ पर कोई इमदाद, ये कैंप वगैरह कोई कुछ आपको मिला है? कहने से कुछ नहीं मिला, हाल यहीं टाइम तो भी कुछ नहीं मिली। जी, इनका कहना है कि हमें कुछ नहीं मिला। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं इस टाइम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बताएं बुजुर्गों, क्या यहाँ पर मिसाल कोई इंतजाम या कोई बंदा पहुँचा अब तक? कश नहीं पूछा, अच्छा सारा मड्डी शादी यक्का लौट गया, बंदे बंदे निकल आए। कहना है कि हमारे पास यहाँ पर कोई इंतजामिया का बंदा नहीं पहुँचा, सारा सामान हमारा इस टाइम पानी में बह चुका है, घर हमारे बह चुके हैं, हमारी फसलात में इस टाइम 4 से 5 फुट पानी मौजूद है। इस टाइम भूखे भी हैं, इनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं है और इस टाइम ये खुले आसमान तले मौजूद है, कोई इनको कैंप वगैरह भी फराहम किए जाएँ। कराची में बारिशों के दौरान कोरंगी रोड और कोरंगी कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव होने से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर हो रही है, जबकि कोरंगी रोड को पानी का दबाव कम करने के लिए काटा गया था। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, कोरंगी रोड से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ रोज़ कबल जो है वो इस रोड को यहाँ से काटा गया था ताकि जो मलीर नदी से पानी आ रहा है उसे कोरंगी नदी से गुजारा जा सके। जो 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, इस दौरान जो है वो ये रोड दोबारा से बह गया है और मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको इस वक्त यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो मुकम्मल तौर पर ये एक नहर के मंजर जो है वो पेश कर रहा है और काफ़ी स्पीड से यहाँ से पानी गुजर रहा है। हमारी DIG ट्रैफिक से भी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि इस रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद करने के बाद जाम सादिक पुल को जो है वो शहरियों के लिए खुला छोड़ा गया था, लेकिन वहाँ भी ट्रैफिक का दबाव काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी देर से ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। अब पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो कोरंगी रोड है या कोरंगी कॉजवे रोड है, दोनों को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात की तब्दीली शरीर रहमान का कहना है कि अदालत के फैसले से पार्टी सरबराह और पार्लिमानी लीडर के इख्तियारात में वजाहत की बजाय इबहाम पैदा हो गया है। पार्लिमान में सियासी जमातों की महदूद नुमाइंदगी होती है। अदालत ने पार्लिमानी लीडर को पार्टी सरबराह के इख्तियारात देकर पार्टी सरबराह को पार्लिमानी लीडर के मातहत कर दिया है। शरीर रहमान ने मजीद कहा कि एक जमात का मुल्क में अलग और पार्लियामेंट में अलग सरबराह कैसे हो सकता है। इस इबहाम को दूर करने के लिए हम फुल बेंच का मुतालबा कर रहे थे। अदलिया काबिल एहतराम है, लेकिन एक मामले के 2 अलग अलग फैसलों की वजह से लोग सवालात उठा रहे हैं। अदलिया से मुतालिक जानिबदारी का बढ़ता तासुर काबिल तशवीश है।